Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we are going to discuss about the anatomy of the testis. Okay, so आज हम testis के anatomy के बारे में discuss करेंगे. So this is a picture of LS of human testis, that is the longitudinal section of human testis, and TS of human testis, transverse section of human testis. Okay, so testis क्या है? Testis is the male gonad. Okay, which secrete testosterone hormone और male sex hormone. Okay, so testis से ही आपका जो male gamete है spawn वहाँ production होता है. So actually the testis has 3 layers. पहले हम जानेंगे testis के 3 layers के बारे में. So one is this is the outer layer, tunica vaginalis, outer layer. Middle layer, tunica albuginea, and inner layer, tunica vasculosa. Okay, ये outer, ये middle, and ये inner layer. Okay, 3 layers are there. Tunica vaginalis is the outer, middle tunica albuginea, and inner tunica vasculosa. Okay, so testis, the पूरे testis जो है, it is divided into around 200 to 250 conical compartments. Okay, these are the conical compartments. ये सब है आपका conical compartments. ये सब देख पा रहे हैं diagram में? These are the conical compartments. So these conical compartments are called testicular lobules. Okay, these conical compartments are called testicular lobule. ये आपका testicular lobule हो गया. Okay, so ये जो testicular lobule है और conicular compartments जो है वो अराउंड 200 के 250 के आसपास नंबर के आसपास एक ह्यूमन टेस्टिस में प्रेजेंट होता है. ओके, so ये जो conical compartments के अंदर आप देख पा रहे होगे एक सा coil like structure. ओके, ये coiling like structure कुछ प्रेजेंट है. Yes or no? Okay, so this coiling like structure is called seminiferous tubule. This coiling structure is called seminiferous tubule. तो seminiferous tubule ही actual site है of spermatogenesis. Okay, actually seminiferous tubule के अंदर ही आपका sperm का formation होता है. तो sperm formation is known as spermatogenesis. Okay, so actual spermatogenesis site is the seminiferous tubule. So that's why seminiferous tubule is called the unit of testis. Okay, the functional unit of testis. Okay, actually testis में seminiferous tubule वो जगह है जहाँ sperm का formation होता है. So sperm formation or spermatogenesis, so that's why it is called as unit of testis or structural functional unit of testis. Okay, so the coiling like structure is called seminiferous tubule. ये हो गया. Okay, so ये देखिए आप transverse section of human testis में ये होता है आपका seminiferous tubule का transverse section. ओके, ये जो coiling like structure आप यहाँ देख रहे हैं वो LS में longitudinal वो देख रहे हैं, लेकिन transversely आप अगर देखोगे तो वो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर आएगा. ओके, तो ये है आपका seminiferous tubule. ये एक seminiferous tubule है, ये एक seminiferous tubule है, ये एक seminiferous tubule है, ये एक seminiferous tubule है. ओके, so this seminiferous tubule, this is the basement membrane. Okay, this is the basement membrane, and ये जो होता है फर्स्ट, ओके, ये जो सेल्स आप देख पा रहे हैं ये सब सेल्स आपका डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट है. धीरे 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 सब स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहा है. सो फाइनली स्पर्म यहाँ पूरे तरीके से फॉर्मेशन होकर सेंटर पोजीशन में रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. तो ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, ये जो आप आउटर लाइनिंग जो देख रहे हैं ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये जो शेप है, जो सेल्स का जो शेप है वो क्यूब शेप होता है एंड जर्म सेल होता है. जर्म सेल क्यों ये सेल से ही आपका गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जर्म सेल. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबोइडल? बिकॉज दीज आर क्यूब शेप्ड सेल्स, तो दे आर कॉल्ड क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, सो ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम से धीरे धीरे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम फॉर्मेशन होगा. सो जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगा, धीरे धीरे म्यूसिस डिवीजन करना स्टार्ट करेगा. ओके, सो वो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है आपके क्लास 12 में. ओके, सो स्पर्मेटोगोनियम, सो जर्मिनल एपिथेलियम फर्स्ट डिफरेंशिएट्स इनटू स्पर्मेटोगोनियम. फर्स्ट स्टेज होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, फर्स्ट स्टेज. देन आफ्टर व्हेन म्यूसिस साइकिल कंटिन्यू, जब म्यूसिस साइकिल
जब आगे बढ़ेगा तब स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट स्टेज होगा उसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट स्टेज होगा उनका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, ये स्पर्मेटोगोनियम हो गया। नेक्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, सो फाइनली आपका क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्मेटोजोआ। ओके, फाइनली ये जो बीच में आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ओके, ये होगा आपका स्पर्मेटोजोआ। ओके, सो दिस जो डिफरेंट स्टेजेस है, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम से जो फाइनली स्पर्मेटोजोआ होगा एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद ये स्पर्म होगा। सो ये जो पूरे प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, so production of sperm from the cuboidal germinal epithelium by means of meiosis division, then that is called spermatogenesis process. so ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। ये होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये भी, तो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल है जो ये सब है। ओके, सो ये वाला सेक्शन को आप यहाँ ये सेक्शन में देख रहे हैं। सो नेक्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो तरीके के सेल्स है। फर्स्ट सेल, ये आप एक टाइप का सेल्स दिख रहे हैं, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल, पिरामिडल शेप और कोनिकल शेप सेल है। ओके, ये है आपका सेर्टोली सेल। ओके, दिस इज द सेर्टोली सेल। ओके, और एक सेल क्या है? ये, ओके, जो दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो ये है आपका क्या? लेडिक सेल। ये सेल है आपका लेडिक सेल। सो टू टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन द टेस्टिस। सो वन इज प्रेजेंट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट है और एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर प्रेजेंट है। ओके, दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। सो काम क्या है इस सेल्स का? सो सेर्टोली सेल it looks like a pyramidal shape or conical shape, okay, having a broad base, okay, attached to the seminiferous tubule, attached to the basement membrane of seminiferous tubule. ये जो broad base है, ये seminiferous tubule के wall से लगा हुआ है और जो conical face है वो अंदर फेस हुआ है। ओके, एंड इसका काम क्या है? फर्स्ट काम इसका है, ये प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ओके, ये जो स्पर्म्स धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, ये फास्ट है आपका जर्मिनल एपिथेलियम। ये धीरे धीरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नेक्स्ट स्पर्मेटोजोआ। ओके, नेक्स्ट फाइनली स्पर्मेटोजोआ होगा। सो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है स्पर्म्स का, ओके, वो डिफरेंट स्टेजेस को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट। ओके, ये जो डेवलप हो रहे हैं, ये अटैच होने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन है इसका। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट्स ABP प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इट सीक्रेट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन का काम क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ओके, ये जो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऑल्सो इट सीक्रेट्स एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। इट सीक्रेट्स एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ओके, सो ये हो गया आपका सेर्टोली सेल्स का काम। और एक सेल क्या है? लेडिक सेल। नंबर 2 इज द लेडिक सेल, जो दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ये सब लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, सेर्टोली सेल्स को हम बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटाकुलर सेल्स, सेर्टोली सेल्स। लेडिक सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ओके, ये लेडिक सेल का दूसरा नाम है, इंटरस्टिशियल सेल। तो लेडिक सेल का मेन फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में यह हार्मोन हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH and ICSH, under the influence of LH
luteinizing hormone, and ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Okay, so ये हो गया आपका 2 types of cell present in the testis. One is Sertoli cell, another one is Leydig cell. Sertoli cell का काम है developing spermatozoa का क्या करना, provide nutrition and attachment site. Okay, providing space for attachment site of the developing spermatozoa. And Leydig cell का काम क्या है, ये secrete करता है testosterone hormone which is most important. Okay, and ये भी कुछ secrete करता है, क्या secrete करता है, APP, androgen binding protein formation करता है, also secretes anti-Mullerian hormone in the fetal life, okay. So next come to, ये हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, कॉनिकल कंपार्टमेंट्स. ये लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो हम टीएस सेक्शन में ये डिटेल्स में स्टडी किए हैं. ओके, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर 2 एंड्स. ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस कैसे प्रेजेंट है, ये ऐसे कर्लिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. ओके, ऐसे प्रेजेंट है. तो ये हो गया आपका ओपनिंग एंड, ये हो गया आपका क्लोज्ड एंड. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ ऐसे सर्कल करके ये फिर से यहाँ रिटर्न हुआ है. सो ये आपका ओपनिंग एंड, ये आपका क्लोज्ड एंड. सो क्लोज्ड एंड फेस टू द आउटर साइड ऑफ द टेस्टिस, एंड जो ओपनिंग एंड है, these are the opening end of seminiferous tube. Okay, so opening end opens to a network like structure. ये पूरे जो ओपनिंग सारे seminiferous tubules जो है ये फिर से एक ओपनिंग में खुले हुए हैं, एंड इट फॉर्म्स ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ये सारे ओपनिंग मिलकर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, वो होता है रिटेटेस्टिस. ओके, ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिटेटेस्टिस. ओके, नेक्स्ट यही रिटेटेस्टिस फिर से आगे जाकर 50 to 20, अराउंड 15 to 20, ओके, स्ट्रेट ट्यूबल्स में फॉर्मेशन हुआ है, एंड दीज आर कॉल्ड वासा एफरेंसिया. ओके, दिस इज कॉल्ड वासा एफरेंसिया. तो सेमिनिफेरस ट्यूबल फर्स्ट है. नेक्स्ट ये ओपन हुआ है कहाँ, रिटेटेस्टिस. नेक्स्ट रिटेटेस्टिस ओपन हुआ है कहाँ तक, वासा एफरेंसिया. ओके, एंड वासा एफरेंसिया अगेन opens into long coil like structure. ये वासा एफरेंसिया again connects or opens into long coil like structure. It is called epididymis. ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका epididymis. ओके, ये epididymis टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है, टेस्टिस को पूरी तरह से एनसर्कल करके रखा हुआ है. ओके, एंड epididymis एंड टेस्टिस ओके मिलकर हम क्या बनाते हैं, टेस्टिकल्स. मिलकर क्या बनाते हैं, टेस्टिकल्स. ओके, एपिडिडाइमिस प्लस टेस्टिस. टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस को पूरा एनसर्कल करा हुआ है. ओके, सो एपिडिडाइमिस अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द हेड पार्ट, कैपोड एपिडिडाइमिस. नेक्स्ट पार्ट इज द मिडिल पार्ट, कार्पस एपिडिडाइमिस, एंड लास्ट पार्ट इज द end part is the cauda epididymis. First is the caput epididymis, second middle part is the corpus epididymis, and last part is the cauda epididymis. Okay, epididymis का काम क्या है, स्पर्म को स्टोर करके रखना आफ्टर देयर मैच्योरेशन. 2 to 3 months के लिए स्पर्म यहाँ स्टोर होकर रहता है कॉडा एपिडिडाइमिस में. नेक्स्ट कॉडा एपिडिडाइमिस कहाँ खुलता है, कड़ा ये होता है आपका कॉडा एपिडिडाइमिस. नेक्स्ट जो डक्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो डक्ट है ये क्या होता है, ये वासा डिफरेंशिया. ओके, ऑन वास डिफरेंस. ओके, एंड ये जो कड़ा एपिडिडाइमिस है, दिस इज कनेक्टेड टू द स्क्रोटल्सिया. दिस इज कनेक्टेड टू द स्क्रोटल्सिया बाय मीन्स ऑफ गिवर्नाकुलम. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. ओके, सो ये होता है डिटेल्स आपका टेस्टिस के बारे में. ओके, अगेन मैं रिवाइज कर लेती हूँ. ये होता है आपका टेस्टिस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके, टेस्टिस ये पूरा 3 लेयर्स, टेस्टिस का आउटर लेयर 3 लेयर्स है. सो फर्स्ट आउटर लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, नेक्स्ट ट्यूनिका अल्बुजिनिया, नेक्स्ट ट्यूनिका वास्कुलोसा. आउटर, मिडिल एंड इनर. ओके, ट्यूनिका वास्कुलोसा जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कवर करके रखा हुआ है. ओके, so these are the testicular lobules और conical compartments. ओके, ये प्रेजेंट होता है. सो conical compartment को हम बोलते हैं testicular lobule. ओके, एंड ये testicular lobule में some coiling like structure प्रेजेंट है.
वो क्या है, वो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जहाँ आपका एक्चुअल स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल दैट्स व्हाई कॉल्ड एज यूनिट ऑफ टेस्टिस। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का ये होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका सेटोली सेल्स है एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्माटोजोआ है। ओके, ये होता है आपका सेटोली सेल्स एंड ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब स्पर्म धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफरेंट स्टेजेस में है। और ये जो बीच में ये जो ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, पूरा मैच्योर स्पर्माटोजोआ है। ओके, सो डिफरेंट स्टेजेस मतलब ये होता है आपका क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर लाइंड विथ क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम, जहां से आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और जर्म सेल्स यहाँ प्रेजेंट है एंड वो क्यूब शेप्ड है, इसलिए हम बोलते हैं क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। धीरे स्पर्माटोगोनिया स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टेज। देन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, नेक्स्ट स्पर्माटोजोआ, ये होगा स्पर्माटोजोआ। एंड स्पर्माटोजोआ का मेटामॉर्फोसिस होगा वो स्पर्म में। ओके, पूरा स्पर्म का रूप लेगा वो, ये मेटामॉर्फोसिस होकर स्टार्ट स्पर्मोजेनेसिस में होगा ये। तो ये डिटेल स्टडी करेंगे हम कहाँ, स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस क्लास में। ओके, सो स्पर्माटोजोआ, सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्माटोजोआ अटैच्ड टू द सेटोली सेल्स। सेटोली सेल्स इसे जगह देता है, इसे अटैच होकर रहने के लिए, फिक्स होकर रहने के लिए। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्माटोजोआ। एंड शेप क्या है इसका, कोनिकल शेप और पिरामिड शेप। और क्या फंक्शन है, ये एबीपी प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करता है एंड एंटी म्यूलेरियन हार्मोन सिक्रेट करता है ड्यूरिंग द फीटल लाइन। ओके, एंड नेक्स्ट सेल क्या है, लेडिक सेल, जो दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में प्रेजेंट होता है। दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, ये है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्वस टिश्यू होगा, देन कनेक्टिव टिश्यू। ये अंदर में दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका लेडिक सेल्स आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, एंड सेटोली सेल्स आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटाकुलर सेल्स। सो लेडिक सेल का काम क्या है, ये आपका क्या सिक्रेट करता है, मेल सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। सो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन सेटोली सेल्स एंड लेडिक सेल। ओके, एंड नेक्स्ट कम टू डिफरेंट डॉग्स ऑफ द स्पर्म। जब स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, मैच्योर होकर वो पेनिस के थ्रू रिलीज होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो क्या क्या पाथ है स्पर्म का, सो स्पर्मेटिक पाथ फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ फॉर्मेशन होगा वहाँ स्टार्ट होगा ना। तो कहाँ फॉर्मेशन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर फॉर्मेशन होता है। सो फर्स्ट पाथ होगा, फर्स्ट जो जगह होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जगह क्या है उसका, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो ओपनिंग एंड है, ये सारे एक जगह पे ये सारे मिलकर एक नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन वो बनाते हैं। एंड ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम, रिटेटेस्टिस। ओके, सो नेक्स्ट स्पर्म का पाथ होगा रिटेटेस्टिस। ओके, सो फर्स्ट इज योर सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ओके, नेक्स्ट इज योर रिटेटेस्टिस एंड रिटेटेस्टिस कहाँ खुला है, रिटेटेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफरेंसिया, रिटेटेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफरेंसिया। सो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगा कहाँ होगा, वासा एफरेंसिया। तो स्पर्मेटिक पाथ फर्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, नेक्स्ट रिटेटेस्टिस, नेक्स्ट वासा एफरेंसिया। देन वासा एफरेंसिया इज प्रेजेंट अराउंड 15 to 20 इन नंबर, 15 से 20 के नंबर आसपास प्रेजेंट होता है वासा एफरेंसिया। एंड वासा एफरेंसिया ओपन्स इनटू कहाँ, एपिडिडाइमिस। सो नेक्स्ट पाथ होगा क्या, एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस जो होता है ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो पूरे टेस्टिस को कवर करके रखा हुआ है इन द कर्लिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्ट जो हेड पार्ट है उसका कैप्यूड एपिडिडाइमिस। सो स्पर्म जब वासा एफरेंसिया निकलेगा तो पहले कहाँ पहुंचेगा, कैप्यूड एपिडिडाइमिस को जाएगा। नेक्स्ट मिडिल को आएगा कॉर्पस एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट कहाँ आएगा, कॉडा एपिडिडाइमिस। ओके, नेक्स्ट कॉडा एपिडिडाइमिस के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वास्ट डिफरेंस के थ्रू चला जाएगा, वास्ट डिफरेंस चला जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, इजैकुलेटेड डक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू वो रिलीज होगा आउट ऑफ द बॉडी।
ओके, सो स्पर्मेटिक पाथ क्या क्या है? फर्स्ट नंबर 1 is seminiferous tubule, नंबर 2 प्रीटेस्टिस, नंबर 3 vasa efferentia, नंबर 4 caput epididymis, 5 corpus epididymis, 6 cauda epididymis. Okay, so next vasa differentia, ejaculatory duct, next urinogenital duct होकर वो पेनिस के बाहर निकलेगा. सो ये होता है आपका. और एक रह गया क्या? ये कॉडा एपिडिडाइमिस, लास्ट पार्ट है आपका एपिडिडाइमिस. ओके, एंड ये कनेक्टेड होता है इन द स्क्रोटल सैक. इट इज कनेक्टेड टू द स्क्रोटल सैक बाय मीन्स ऑफ गिवर्नाकुलम, बाय मीन्स ऑफ गिवर्नाकुलम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस. ओके, सो अगर कोई डाउट हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूंगी. थैंक यू.